جھنگ میں مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری، شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ یوٹیلیٹاری سکول تمام تر مفت آٹے کے حصول کے لیے آئے شہریوں سے بھر گئے۔ مرد خواتین لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظام بھی نہ کیے جا سکے۔ جنگ میں مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری، شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ یوٹیلیٹی سٹور ہوں یا سرکاری سکول، تمام تر مفت آٹے کے حصول کے لیے شہریوں سے بھر گئے۔ مرد و خواتین لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور، ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انتظامات بھی نہ کیے جا سکے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں بھی مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مفت آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ یوٹیلیٹی سٹور ہوں یا پھر سرکاری سکول شہریوں سے بھر گئے۔ مرد و خواتین انتظام کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے خاطر خواہ انتظامات بھی نہ ہونے کا شکوہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں جنگ میں مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، ضلع بھر میں اس ٹائم 100 سے زائد جو ہے وہ مفت آٹا کی فراہمی کے لیے پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جن میں سرکاری سکول، کالجز اور یوٹیلیٹی سٹور موجود ہیں۔ ان تمام تر پوائنٹس پر جو مفت آٹے کے حصول کے لیے مرد و خواتین کی بڑی تعداد امڑ آئی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ متعدد پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کیے گئے تھے وہ بھی کم پڑنے لگ گئے ہیں۔ اس ٹائم میں آدھی سکول میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے اب تک صبح سے لے کر اب تک جو ہے وہ 450 سے زائد مفت آٹے کے جو تھیلے تھے وہ یہاں پر شہریوں میں فراہم کیے گئے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ کچھ ٹائم سے یہاں پر آٹے کی فراہمی کا سلسلہ بند ہے۔ تاہم جو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دوبارہ سے اس سلسلے کو شروع کرنے کے لیے آٹے کی فراہمی کو جو ہے یقینی بنانے کے لیے مل سے دوبارہ سے آٹا کا جو ہے فراہمی ہے اس کا سلسلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میرا کیمرہ مین اس ٹائم آپ کو دکھا سکتا ہے کہ میری ایک جانب بڑی تعداد میں یہاں پر مرد و خواتین موجود ہیں جو آٹے کے حصول کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے ابھی تک وہ آٹے کا حصول حاصل کرنے میں جو ہے وہ ناکام نظر آتے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اور ڈپٹی کمشنر جنگ کی جانب سے مختلف پوائنٹس کا دورہ بھی کیا جا رہا ہے۔ الل صبح جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مختلف سکولوں کا اور خاص طور پر یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ کیا گیا اور وہاں پر خود جا کر انتظامات بھی چیک کیے گئے۔ اسی سلسلہ میں مکمل ضلعی انتظامیہ کی ٹیم کو بھی جو ہے وہ ایکٹیو کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم احمد رضا سرا صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، صبح سے لے کر اب تک جو ہے وہ مختلف پوائنٹس پر آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انتظامات بھی ناکافی نظر آتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس پوائنٹ پر جو ہے وہ ایک بریک آیا ہے آٹے کی فراہمی کا۔ کیا سمجھتے ہیں مزید اقدامات بہتر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں؟ جی، آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ ہم نے ضلع جھنگ میں 131 پوائنٹس ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں، ان میں 68 جو ہیں وہ ہم نے اسکول اور کالجز میں پوائنٹس بنائے ہیں اور 63 جو ہیں وہ ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں۔ یہ کیونکہ ایک نیو ایکسپیرینس ہے، اس دفعہ یہ جو فری آٹا کی فراہمی جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو شہریوں کے لیے فری آٹا سپلائی کر رہے ہیں، تو صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک تمام ڈپٹی کمشنر صاحب خود بھی، اے ڈی سیز، اے سیز، ہمارے جو باقی فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، اسکول اور کالجز میں ہم نے پوائنٹس بنائے ہیں، ان کے جو ہیڈز ہیں وہ سب فیلڈ میں ہیں۔ الحمدللہ کل بھی ہمارا کل پہلا دن تھا، 30,000 سے زیادہ بیگز ہمارے کل تقسیم ہوئے تھے۔ آج ابھی تک ہمارا 60,000 آلموسٹ بیگ جو ہے وہ پرسکون طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے۔ ابھی اوورآل جہاں بھی کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے کہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے بیگز جلدی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں، ادھر فوری طور پہ ہم سپلائی کو انشور کراتے ہیں تاکہ مزید بیگز آئیں اور کسی لوگوں کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہ پہلا اور دوسرا دن ہے۔ ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کن پوائنٹس پہ زیادہ رش ہے، تو آپ دیکھیں گے جہاں آج رش کی وجہ سے کوئی ایشو آیا ہے، کل الحمدللہ اس کو ہم جو ہے وہ اس کو کور کریں گے اور ان انٹرپٹڈ صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک سپلائی انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ پہلے گورنمنٹ نے ہمیں 9 سے 5 بجے کا ٹائم دیا ہے، لیکن آج رش کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر صاحب نے حکم دیا ہے کہ کل سے 8 ساڑھے 8 بجے ہم ڈسٹریبیوشن انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ جی بالکل، صبح سویرے ہی ڈسٹریبیوشن کا عمل شروع کیا جائے گا۔ میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ صبح سے آپ آئے ہیں، ابھی یہاں پر آٹا نہیں مل رہا، کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو، کیا درخواست بسم کریں گے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی یہاں پر انتظامات جو ہیں
इंतजामिया की तरफ से बिल्कुल नाकिस है। कोई पानी पीने के लिए भी कोई जो है ना नहीं है। हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, कतारों में लगे हुए हैं। हम जैसे बुजुर्गों के लिए कोई खसूसी पॉइंट नहीं है। ये जो पॉइंट बने हुए सुबह से लेकर शाम तक लोग यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन मुफ्त आटे की फराहमी हमें नहीं हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने माह रमज़ान की आमद पर गरीबों का एहसास किया और उनको आटा मुफ्त फराहम करने के लिए उन्होंने ये जो है काम शुरू किया। हम इस पर खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के मशकूर हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर कहेंगे कि जो पॉइंट है उन पर इंतजामात बिल्कुल नाकिस हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, खड़े होने के लिए और बैठने के लिए कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया से गिला किया जा रहा है कि यहाँ पर उनके लिए बैठने के लिए खातिर खा इंतजामात नहीं है। ज़ईफ़ुल उमर यहाँ पर लोग आ रहे हैं जो अपना वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गरीब मुफ्त आटे के लिए तज़लील और तशद्दुद सहने पर मजबूर हो गया। फैसलाबाद के कलीम शहीद पार्क में मुफ्त आटा पॉइंट पर भगदड़ मच गई। हंगामा आराई के दौरान मुतादिद मर्द और खवातीन जख्मी। पुलिस की जानिब से शहरियों पर तशद्दुद भी किया गया। आपको बताएं, गरीब मुफ्त आटे के लिए तज़लील और तशद्दुद सहने पर मजबूर हो गया। पुलिस की जानिब से शहरियों पर तशद्दुद भी किया गया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका कलीम शहीद पार्क है, जहां पर पार्क के अंदर जो फ्री आटा है आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से अहसन इकदाम उठाया गया कि रमजान मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम को मुफ्त आटे की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। तो कलीम शहीद पार्क के अंदर भी वो पॉइंट जो है वो इंतजामिया की जानिब से मुख्तस किया गया, लेकिन वहां पर भगदड़ मचने की वजह से जो मुतअद्दिद मर्द और खवातीन हैं वो जख्मी हो गए। इंतजामिया की जानिब से खातिरख्वाह इंतजामात जो हैं वो ना किए जाने की वजह से ये जो मामला है वो पेश आया और सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से भी शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुफ्त आटा हासिल करने आए शहरी जो हैं वो तजलील और तशद्दुद सहने पर मजबूर हैं और ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद की जो है वो खामोश है। इससे कबल जो कमिश्नर फैसलाबाद हैं और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हैं उनकी जानिब से भी कलीम शहीद पार्क का विजिट किया गया, इंतजाम को चेक किया गया, लेकिन इसके बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर मर्द खवातीन जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं और पुलिस एहलकारों की जानिब से उन पर तशद्दुद भी किया गया है। जो कि मुफ्त आटा हुकूमत की जानिब से देने का जो वादा किया गया वो पॉइंट्स भी मुख्तस किए गए, वहां पर आटा भी पहुंचाया गया, लेकिन जो इंतजामात हैं वो अहसन तरीके से सरंजाम पर जो शहरी हैं वो जलील होने पर मजबूर हैं कि मुफ्त आटा लेने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी जानिब से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनकी तजलील की जाती है। तो इस हवाले से जो ज़िला इंतजामिया है उसको चाहिए कि वो इंतजामात मुकम्मल तौर पर चेक करें, अफसरान वहाँ पर जाएँ, मौका देखें और जाकर जो भी सहूलियात हैं मुफ्त आटा जो हुकूमत की जानिब से देने का इकदाम उठाया गया है उसको यकीनी बनाए और बाइज्जत तरीके से शहरियों को इस महंगाई के दौर में हुकूमत की जानिब से दिया गया जो रिलीफ पैकेज है उसको यकीनी बनाया जाए। फजील हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे गरीब मुफ्त आटे के लिए तजलील और तशद्दुद सहने पर मजबूर हो गया। फैसलाबाद के कलीम शहीद पार्क में मुफ्त आटा पॉइंट पर भगदड़ मच गई। दूसरी जानिब डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद का डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर के हमरा कलीम शहीद पार्क में मुफ्त आटा फराहमी पॉइंट का दौरा। आटा लेने आई खवातीन के लिए बैठने के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी। आपको बता रहे हैं डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद का डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर के हमरा कलीम शहीद पार्क में मुफ्त आटा फराहमी पॉइंट का दौरा। आटा लेने आई खवातीन के लिए बैठने के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत भी की गई। डिविजनल कमिश्नर का आटे की फ्री सप्लाई पॉइंट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर भी दौरा में कमिश्नर सिल्वर सईद के हमरा मौजूद थे। सिल्वर सईद ने कलीम शहीद पार्क में आटा फराहमी की मॉनिटरिंग भी की। फ्री आटा लेने आई खवातीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, ऐसा कहना है कमिश्नर साहिबा का। कलीम शहीद पार्क समेत तमाम पॉइंट पर खवातीन के लिए इंतजाम भी बेहतर बनाए जाएं। आटा सप्लाई का अमला बर वक्त ड्यूटी पर ना पहुंचा तो महकमाना कार्रवाई की जाएगी, सिल्वर सईद की जानिब से कहा गया। कहां से मिलता है सस्ता आटा, बेनजीर इनकम सपोर्ट क्या है? शीरख्वार बच्चों को गोद में लिए भट्टों पे काम करने वाली खातून ने दिल दहला दिया।
फैसल आबाद की मोटर जहांगीर पर गुर्बत की मारी खातून आला हुकाम की नजरों से ओझल हो गई। दर्द भरी दास्तान सुनाई, हुकूमत से मदद की अपील भी कर दी। आपको बता रहे हैं, शीरख्वार बच्चों को गोद में लिए भट्टों पर काम करने वाली खातून ने दिल दहला दिया। फैसलाबाद के मोड़ जहांगीर पर गुर्बत की मारी खातून आला हुकाम की नजरों से ओझल, दर्द भरी दास्तान सुनाई, हुकूमत से मदद की अपील भी कर दी। गोद में शीरख्वार बच्चों के लिए भट्टे पर काम करने वाली खातून ने दिल दहला दिया। मोड़ जहांगीर गुर्बत की मारी खातून हुकाम की नजरों से ओझल, ईंटों के भट्टों पर काम करके बच्चों का पेट पालती है। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर खवातीन कमसन बच्चों के हमरा ईंटों के भट्टर पर काम कर रही हैं और अपना जो रोज़मर्रा किचन चलाने के लिए जो भी इजरत मिलती है बच्चों का पेट पालती हैं। और ये हम सिंध में नहीं जबकि पंजाब के ज़िला फैसलाबाद में मौजूद है, जहाँ बेशर देहातों में खवातीन कमसन बच्चों के हमरा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन तक हुकूमती रिलीफ पहुँच पाता है या नहीं, क्या इनको पता है? बताइएगा कि आपको पता है कि सस्ता आटा मिल रहा है, फ्री आटा मिल रहा है, उसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आपने कभी इनका नाम सुना है? कितों तो काम करते हो बच्चियां दे नाल ही थे? सानू बहुत देर हो गई काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे ने फिर इन्हों का पेट तो पालना ही है काम करके। ठीक है, तो की कभी हुकूमती इमदाद मिली तुहानू? नहीं। की मुतालबा करते हो कमसन बच्चों के नाल इन्नी गर्मी च आए हो, की चाहते हो गवर्नमेंट वालों इमदाद मिले? हाँ जी। जी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खवातीन है वो कमसन बच्चों के हमरा ईंटों के भट्टे पर काम करने पर मजबूर हैं और ऐसे बेशर जो मुस्तक खवातीन है वो हुकूमती इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। समुद्री में भी मुफ्त आटे की तकसीम जारी, मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद आटा के हसूल के लिए पहुंच गई। कार्ड स्कैन और तस्दीक की मैसेज में भी मुश्किलात का सामना। समुद्री में भी मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। मर्द और ख्वातीन की बड़ी तादाद आटे के हसूल के लिए पहुंच गई। कार्ड स्कैन और तस्दीकी मैसेज में भी मुश्किलात का सामना। आपको बताएं, मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। मर्द और ख्वातीन की बड़ी तादाद आटा लेने पहुंच गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से फ्री आटा जो है वो फ्राहम करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से आवाम जो है वो लाइनों में लगी हुई है, मर्द व ख़वातीन और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और ख़ासतौर पर देखा जाए तो यहाँ जिमनेजियम में जो है इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए जो है वो बैठने का इंतजाम कोई नहीं है। इस वक्त हमारे साथ शहरी यहाँ से मौजूद, उनसे जानते हैं क्या कह रहे हैं। आटा मिला? नहीं सर, आटा नहीं मिला। मैसेज भी किया तो हुण कहंदे जी 7 दिनों बाद आओ जी, तुहाडा मैसेज नहीं मिलिया। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਟਾ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ, 300 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਟਨਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਓ ਜੀ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ, 170-80 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। आप क्या कहते हैं, क्या मसला आ रहा? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਟੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 470 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਏਡੀ ਪੁਸ਼ਪਤੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਟਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਦਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ। बिल्कुल जी, शहरी भी इस हवाले से काफी ज्यादा परेशान है, खवातीन भी काफी परेशान कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। अहमदपुर सियाल में आटा नाकिस होने की शिकायत, डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने नोटिस ले लिया। आपको बता रहे हैं, अहमदपुर सियाल में आटा नाकिस होने की शिकायत, डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने नोटिस ले लिया। कहते हैं आटे की सैंपलिंग की जा रही है, शिकायत का अजाला किया जाएगा। 63 यूटिलिटी स्टोर्स हैं हमारे पॉइंट्स, जो आटा पॉइंट्स। उसके अलावा हमने आटा डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर्स खोले हैं 68 वो हैं।
तो हर जगह पे जो है हमने प्रॉपरली उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। सारे हमने अपने पटवारी साहबान की और IT एक्सपर्ट्स की और हमने मिलके जो टीमों के करें। और कल जो है 29,000 बैग जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए डिस्ट्रिक्ट झंग में, और आज से दूसरा दिन है और टीमें जो है हमारी ड्यूटी पे हैं। और ख़ास तौर पे जो है आवाम का रश ज़रूर है इंशाल्लाह, लेकिन हमारी साथ कोशिश भी है कि हम अपनी सारे इंतज़ामी जितनी भी जो है एफर्ट्स इंतज़ामी की जो कर सके वो करें। तो जो क्वालिटी की बात है आटे की, वो हम इंश्योर करा रहे हैं। जो हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स हैं और साथ फूड डिपार्टमेंट की टीम जो हैं, ये रैंडमली सैंपल्स ले रहे हैं फैक्ट्री लेवल पे, और वहाँ से बाकायदा क्वालिटी को इंश्योर करा के फिर भेजा जा रहा है। तो कोशिश है कि ये जो फ्री आटा है, जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, हम इसको सक्सेसफुली डिस्ट्रिक्ट झंग में इम्प्लीमेंट करा सकें। आपको बता रहे हैं अहमदपुर से हाल में आटा नाकिस होने की शिकायत। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी ने नोटिस ले लिया। यहां आपको बताएं रमजानुल मुबारक में रिलीफ की आस लगाए फैसलाबाद के शहरियों के साथ हाथ हो गया। 10 किलोग्राम आटे का थैला 508 से बढ़ाकर 1158 रुपए का कर दिया। जिनको मुफ्त आटा नहीं मिला उनके लिए आटा खरीदना ही मुश्किल हो गया। शहरी मजीद क्या दुहाइयां देते हैं, जानते हैं खिलजा लियाकत। जी खिलजा बताइएगा। बाद में एक जाने तो मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, रमजानुल मुबारक के हिसाब से रिलीफ दिया जा रहा, तो दूसरी जानिब आटे के जो रेट है वो दुगने से भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। 10 किलोग्राम आटा जो है अगर उसके पीछे अगर रेट की बात की जाए तो 508 जो है रेट में इजाफा हो गया। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो इस हवाले से खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। एक जाने तो मुफ्त आटा दिया जा रहा है, तो दूसरी जाने में अगर बात की जाए तो रेट 508 बढ़ा दिया गया एक 10 किलोग्राम के पीछे, क्या कहेंगे आप? वो मैडम जी, ये अस्सलाम वालेकुम, कि वो इस वक्त नहीं 500 रुपया ज़्यादा महंगा कर दिया है, इसलिए मजदूर आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत मुश्किल दुश्वार पेश आ रहा है हमें। हमारे 5-6 बच्चे हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, बहुत मुश्किल बढ़ गई है। मैं सिर्फ दिहाड़ी पर काम करता हूँ, जूते के सेल मैं नहीं करता हूँ। 650 दिहाड़ी है मेरी तकरीबन सिर्फ, तो मैं कैसे गुजारा करूँ? तो आपसे अपील है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी करके वो आटा सस्ता फराहम किया जाए, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। शहरियों का कहना है कि एक जाने मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, दूसरी जानब आटे के जो रेट हैं अगर दुकानों में बात की जाए वो डबल से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो शहरियों की हुकूमत से अपील है कि अगर आटे के जो रेट हैं उनको कम कर दिया जाए, मुफ्त आटा चाहे फराहम ना किया कर रही थी। बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के स्पेशल रमजान पैकेज के तहत अहल अफराद और मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर ने मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया है। तहसील भवाना में मजमूई तौर पर 5 पॉइंट्स पर मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर बताइएगा। हुकूमत पंजाब के स्पेशल रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक और रजिस्टर्ड अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। तहसील भवाना में 5 आटे के सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर भी मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना शकीब सरवर जो है वो यहाँ पर निगरानी करें, मेरे साथ मौजूद बात भी करते हैं। सर बताइएगा, ये जो आप आटा तकसीम कर रहे हैं इस हवाले से क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम के लिए आटे की फराहमी हुकूमत पंजाब की तरफ से यकीनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं और 11 यूटिलिटी स्टोर इस्टेब्लिश किए हैं। लोगों से हमारी जो दरख्वास्त है ना वो इस बारे में ये है कि लोग आराम से लाइनें बनाकर अपनी टाइम के साथ अपनी बारी के साथ लेते जाएं। यहाँ पर एक एक शनाख्ती कार्ड को स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद उनको आटा मिलेगा। हर एक आदमी जो कि डिजर्विंग होगा उसको आटा मिलेगा और हर 10 दिन के बाद अगला थैला उसको आटे का मिलेगा। इस तरह उनको 3 थैले मुकम्मल आटे के मिलेंगे हर एक आदमी को जो डिजर्विंग होगा। लेकिन लोगों से यही है कि लोग लाइनें बना लें अपनी अपनी और लाइनें बनाकर आराम से लेते जाए ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर भवाना शकीब सरवर की बात आपने सुनी। उनका ये कहना है कि वो शहरियों से अपील कर। शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म की जानिब से कम आमदनी वाले अफराद के लिए पेट्रोलियम कीमतों में रिलीफ देने पर गौर। पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए फी लीटर तक रिलीफ की खबर पर शहरियों ने हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं ऐसे फैसले से आम आदमी के लिए आसानी होगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। को रिलीफ देने के हवाले से जो अहसन इकदाम है उसका सोचा जा रहा है, जिसका जायजा इजलास जो है वो लाहौर के अंदर मुनक्कद हुआ। ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद
शहबाज शरीफ, जिसमें 50 रुपये फ़ी लीटर तक सब्सिडी दी जाएगी पेट्रोल की कीमतों में। मोटरसाइकिल और रिक्शा और छोटी गाड़ी चलाने वाले जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, 50 रुपये फ़ी लीटर तक सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की जानिब से, इस हवाले से क्या कहते हैं? अच्छी बात है, देनी चाहिए। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से। चले यही सही, 50 रुपये सस्ते सही तो मिले तो सही। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मजदूर आदमी के लिए तो बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल, मजदूर के लिए कोई रिस्पांस नहीं। और ये जो फैसला अगर किया जाता है हुकूमत की जानिब से, जो अच्छा फैसला होगा। यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर भी हैं, पेट्रोल डलवाने आए हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी बताइएगा, अगर 50 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोल सस्ता किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्या इससे फ़ायदा होगा? इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, तो हमें भी नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, हम 5 गेड़े लगाते हैं तो हमारा 500 में पेट्रोल तो कुछ भी नहीं होता। इससे ये 2 के गेड़े लगते हैं बस 500 से तेल में से। इससे बच्चों का खर्चा भी निकलता है। सस्ता हो तो फिर तो हमारे बच्चों का खर्चा भी निकले, हम तो यही दुआ करते हैं। जी पेट्रोल जो है वो सस्ता होगा तो उससे रोज़गार जो है उसमें भी बेहतरी आएगी। और जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनका कहना है कि कारोबार जो है अब वो पहले ही ना होने के बराबर है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट शहर में स्कूल और कॉलेजेस के औकात में बेहंगम ट्रैफिक वबाल जान बनने लगी। कचहरी रोड, मोहल्ला गड़ा और फर्नीचर मार्केट में जगह जगह ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरी घंटों इंतजार की अजियत से दो चार, ट्रैफिक एहलकार ना होने का शिकवा किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर बताइएगा। बड़ी शाहराहों के बाद छोटी शाहराहों से भी चिन्योट की ट्रैफिक पुलिस और वार्डन जो है वो गायब है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो छुट्टी का वक्त है और अंदरून शहर में न सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस के औकात में शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ गई हैं। छुट्टी का वक्त है और यहाँ पर ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस 1 किलोमीटर की फंसी हुई जो ट्रैफिक है उसमें कोई एक अहलकार जो है वो नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से जो गुजरने वाले राहगीर हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कब से लाइन में लगे हुए हैं, कोई ट्रैफिक वाला नज़र नहीं आ रहा। पौना घंटा हो गया सर, फंसे हुए हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया। देख कोई इधर नहीं है हलचल शिकायत करने वाला। अच्छा, स्कूल के औकात में ट्रैफिक बंद रहती है, क्या मुतालबा करेंगे? उनको चाहिए कि 1 वे कर देना चाहिए किसी तरह भी। बिल्कुल जी, दूर दूर तक ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिस वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और कोई एक ट्रैफिक एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है कि कोई किसी तरीके से यहाँ पर जो फंसी हुई ट्रैफिक है उसके लिए कोई इकदाम करे, जिस वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और गुजरने वाले जो शहरी हैं। चंद मिनट का ये फासला है डिग्री कॉलेज से तहसील चौक का। कई शहरी घंटों अजियत से दो चार हैं, जिनका कहना है कि आए रोज यही सूरत हाल होती है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीजीएफडी ने तमाम स्टाफ को वीकली कारकर्दगी रिपोर्ट हर सोमवार को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। एफडीए की जेर इंतजाम 17 कॉलोनियों में सहूलियात पर तवज्जो दी जाएगी। मोहम्मद आसिफ चौधरी का कहना है कोई फाइल बिला वजह लेट की गई तो मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। वकास बेग हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजीएफटीए फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ चौधरी की जानिब से तमाम तर डिपार्टमेंट्स को कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से सख्ती से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से डीजीएफटी का ये कहना था कि कोई भी शख्स जो एफडीए ऑफिस किसी भी फैसिलिटेशन के लिए आता है उसकी फ़ाइल को बिला जवाज़ रोका ना जाए। हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, मुख्तलिफ हीले बहानों से दफातर के अंदर फाइल्स रुकती हैं, शहरी परेशान होते हैं, उसके हवाले से आपने अहकाम दिए हैं, ख़ासतौर पर वाजबात की वसूली पर जोर दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं अननेसेसरी, जिसको रेड टेपिज्म भी कहते हैं, वो मैंने डायरेक्शंस दिए हैं। एक तो हम परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं एवरी वीक। दूसरा जो लोगों की भलाई के या सहूलत के काम हैं, जिस तरह 1 विंडो ऑपरेशन हमारा चल रहा है, उसको इंश्योर कर रहे हैं कि जो टाइमलाइंस उसमें दी जाती हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। जैसे बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल है, बाकी चीज़ें हैं, वाजबात की वसूली है। रिकवरी की तो हम डेली स्टेटमेंट आती है और वीकली उसको रिव्यू करते हैं। लाइकवाइज दूसरी चीज़ें भी हम सारी मॉनिटर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। हाउसिंग कॉलोनीज़ को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, जो इलीगल हैं वो भी ले रहे हैं। और जो सारे
रूल्स रेगुलेशंस और कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके आ रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और अप्रूवल्स भी ग्रांट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि एफडीए के ज़ेर इंतज़ाम कुछ कॉलोनियाँ मौजूद हैं जिनमें मिलेट टाउन भी है, मदीना टाउन भी है, एफडीए सिटी रीजन की एक बड़ी कॉलोनी है, यहाँ शहरियों की सहूलियत के लिए कुछ मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, ये हमने एक डिटेल्ड रिव्यू किया है। जो एफडीए की अब तक ज़ेर इंतज़ाम कॉलोनियाँ जो एफडीए की अपनी हैं, अपार्ट फ्राम एफडीए सिटी, वो 17 हैं। इसमें जिस तरह आपने चंद कॉलोनियों का नाम भी लिया है, इसमें बाकी कदरे ठीक हैं, लेकिन जो मिलत टाउन है उसकी हालत कुछ ख़राब है, उसको हम टेकअप कर रहे हैं और उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज से उसके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी काफ़ी बिगड़ा हुआ है, उसको बेहतर करेंगे। इसी तरह दीगर कॉलोनियों में भी जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ इम्प्रूवमेंट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल ऐसी तमाम कॉलोनियाँ जो फैसलाबाद में 17 के करीब हैं, एफडीए के ज़ेर इंतज़ाम चल रही हैं, उनमें मौजूद जो सहूलियत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबादी हो जाए तैयार, गुलबर्ग में बाटा की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। बाटा की ईद से पहले ईदी जूतों पर फ्लैट 20% डिस्काउंट की खुशखबरी सुना दी। इफ्तिताही तकरीब में मैनेजर डायरेक्टर मलिक इमरान की खसूसी शिरकत, नई ब्रांच का फीता काटा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबादियों को जो है वो ईद से पहले ही ईदी मिल चुकी है, क्योंकि गुलबर्ग इलाके के अंदर यहाँ पर बाटा की नई शॉप का जो है इफ्तिताह हो चुका है, जिसका इफ्तिताह जो है यहाँ की एमडी की जानिब से जो है वो किया गया है। फीता भी काटा गया, धुआ भी की, ताकि ये दुकान जो है मजीद जो है वो तरक्की कर सके और बाटा की जहाँ जहाँ दुकान है वहाँ पर फैसलाबादी जो है वो तो खुश नजर आते हैं, लेकिन फैसलाबादियों को है ये भी ईदी मिल चुकी है कि वो यहाँ आकर अपने मनपसंद जूते जो है वो ईद से पहले भी खरीद सकते हैं। और उसके साथ साथ उससे बड़ी खुशखबरी ये है कि तमाम इन जूतों के ऊपर, उसके साथ साथ तमाम चीजों के ऊपर जो है वो 20% फ्लैट डिस्काउंट है, 2 दिन तक जो है वो जारी रहेगा और फैसलाबादी आ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ इनके डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर बताइएगा कि यहाँ पर जो है गुलबर्ग के अंदर बाटा की दुकान जो है वो खुल चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि फैसलाबादियों के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सारे कंज्यूमर जो भी इस वक्त दुकान में मौजूद है इस ओपनिंग के मौके पे, और पूरे फैसलाबाद के लोगों के लिए कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था अपने स्टोर्स को अपग्रेड करने का। उस सिलसिले में गुलबर्ग पहला स्टोर है फैसलाबाद में। बाकी हमने पिछले हफ्ते कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में भी कुछ अपग्रेड किए हैं। तो ये बात है कि इधर पूरी वैरायटी होगी, बाटा की जो भी इंटरनेशनल कलेक्शन भी है, जो लोकल कलेक्शन भी है, और इसको इस तरीके से बनाया कि एक हमारे जो कस्टमर हैं उनको बेहतरीन कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस दिया जाए। यहाँ बेहतरीन स्टाफ, बेहतरीन क्वालिटी के शूज़ दस्तयाब होंगे। जैसा आपने अभी बताया है, तो ओपनिंग की खुशी में पहले अभी डिस्काउंट चलेगा फ्लैट 20%, ईद से पहले मौका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद 23 मार्च की सेलिब्रेशन का डिस्काउंट भी है, तो वो भी आगे 3 दिन चलेगा। तो अगले 4-5 दिन मैं आपकी वसातत से कंज्यूमर से कहूँगा कि आएँ, हमारा गुलबर्ग जो स्टोर है विजिट करें, यहाँ बेहतरीन वैरायटी मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पे जो है विजिट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है इसी तरह से जारी रहेगा, ऑफर्स लगी रहेंगे। हमारे साथ रिटेल मैनेजर मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे कि फैसलाबादियों को, सर ने भी कहा कि ईद से पहले जो है वो ईदी मिल चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्वियसली ये महंगाई का दौर है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए महंगाई से, तो ये ईद से पहले ईदी है कि लोग पहले आए और इस वक्त रश कम होता है और 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल 20% डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे फ्लैट मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सर, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर बताइएगा कि फैसलाबादियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गुलबर्ग के रिहायशी जो है उनके लिए तो यूं है कि वो यूं आएंगे चुटकी बजाकर यहाँ के आके ईद की शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। सर क्या कहेंगे सवाल? जी, ये हमने सबके लिए आसानी की है कि ईद शुरू होने से पहले ही ईद की खुशियाँ हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं। 20% बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट है। आप सारे अपने फैमिली के साथ तशरीफ लाएं और इसका बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाएं। आप बिल्कुल यहाँ पर आएँ, अपने फैमिली के साथ आएँ, शॉपिंग करके जाएं, ईद की शॉपिंग करें। कैमरामैन उस्मान आपको इस वक्त दिखा सकते हैं खूबसूरत किस्म के डिज़ाइन के शूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। ख़वातीन की शॉपिंग हो, ख़वातीन की हील्स हो, पम्प्स हो, जूते हों, हर तरह के कलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कलर्स की वेराइटीज़ जो हैं यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन के खूबसूरत जूते, पम्प्स, हील्स हों या उसके साथ साथ स्कूल शूज़ हों, वो भी मौजूद हैं। इस वक्त ख़वातीन की खूबसूरत हील्स जो कोट शूज़ वो पहनना पसंद करती हैं और मौसम की मुनासबत से, कपड़ों की मुनासबत से पहनती हैं, तो वहीं बच्चों की जो है खूबसूरत
खूबसूरत यहाँ पर सेल जो है वो लगाई गई है। 2 दिन तक ये सेल जो है वो जारी रहेगी, जहाँ पर बच्चों के जो है ओपन शूजेस के साथ साथ पंप्स, जॉगर्स और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर खूबसूरत बच्चों के इवन यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के जो शूज है वो भी मौजूद हैं। तो फैसलाबादी जो है इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें और यहाँ पर आएं ताकि यहाँ पे खरीदारी जो है वो कर सके और ईद से पहले जो शॉपिंग है वो भी कर सके। जी मैं अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। यहां आपको बताएं, सूबाई वजीर सनअत और तिजारत SM तनवीर की फैसलाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिस आमिद, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद से मुलाकात की। ईवान सनअत और तिजारत जंग के सदर चौधरी अंसर की क़यादत में आए वफद से भी मिले। जंग चैम्बर के दफ्तर के लिए स्टेट लैंड के हसूल पर बात की गई। SMBR की सेक्रेटरी कॉलोनीज को सनतकारों और ताजिरों के साथ बैठकर मामले हल करने की हिदायत की गई। सूबाई वजीर SM तनवीर कहते हैं सनतकारों और ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। पंजाब भर की तरह गोजरा में भी हफ्ता सेहत का आगाज कर दिया गया। मजीद हेल्थ वीक से मुतल्लिक जानना लेते हैं फरहान से। जी फरहान बताइएगा। बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजरा में भी 3 रोज़ा हफ्ता जो है सेहत उसको मनाया जा रहा है। आज इसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गोजरा ने किया है। मेरे साथ MS गोजरा मौजूद हैं, बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मरीजों को या शहरियों को, आने वालों को क्या क्या सहूलियात हैं जो या टेस्ट हैं जो फराहम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 3rd हेल्थ वीक है जो ऑल ओवर पंजाब में मनाया जा रहा है। तो तहसील गोजरा में, ये TH हॉस्पिटल गोजरा में भी मनाया जा रहा है। इसमें जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो रूटीन में जो भी आते हैं, लेकिन इसका मनाने का मकसद ये है कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि हर बीमारी की बहुत शुक्रिया आपका।